Hello, my dear students, and welcome back to my channel. I'm going to continue with the 10th chapter of physics of class 9th, that is magnetism. So this is our second lecture for this chapter. So what are the topics that I'm going to cover in this video? The topics are evidences of existence of Earth's magnetic field. तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, हमारा जो पृथ्वी है, जो प्लैनेट है, that behaves like a magnet and therefore it has its magnetic field. Yes. So there are evidences which prove it. तो उन evidences को हम पढ़ने वाले हैं. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है इस टॉपिक से. और इसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करने वाले हैं या प्लॉट करने वाले हैं 5 अलग अलग केसेस का, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. So we are going to study the magnetic field lines of Earth, then a bar magnet, then a U-shaped magnet, then two unlike poles facing each other, and then two like poles facing each other. So let's start our class. So we are going to start with first topic, evidences of existence of Earth's magnetic field. वो कौन कौन से evidences हैं जो ये prove करते हैं कि हाँ भैया हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है. सबसे पहला एविडेंस मैंने बताया था, सबसे पहला पॉइंट, यू सी, a freely suspended magnetic needle या बार मैग्नेट, whatever, मैग्नेटिक नीडल कहो या बार मैग्नेट कहो, a freely suspended magnet always rests in geographic north south direction. मैंने ये लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ना कि अगर किसी भी मैग्नेट को, बार मैग्नेट को या मैग्नेटिक नीडल को फ्रीली सस्पेंड कर देते हो और वो फ्री टू रोटेट है, इट इज फ्री टू रोटेट इन एनी डायरेक्शन, बट जब वो रेस्ट पोजीशन पर आएगा तब वो हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे ही पॉइंट करेगा, हमेशा. तो द मैग्नेटिक नॉर्थ, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हिच नॉर्थ, द पोल, द मैग्नेट, द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट विल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स geographic north, and the south pole of the bar magnet or the south pole of the magnetic needle will always point towards the geographic south. तुम उसको अगर ऐसे घुमा दो जबरदस्ती, then also when you leave it, it will automatically turn itself and again come in the same position. The north pole of the magnet will point towards geographic north, south pole of the magnet will point towards geographic south. So ये कैसे हो सकता है? How is it possible? It is only possible if there is some other magnetic field which is exerting some force on this magnet. इस पे फोर्स लग रहा है तभी नहीं अपने आप को घुमा ले रहा है और एक पर्टिकुलर अलाइनमेंट में ही अपने आप को रेस्ट करा रहा है. अगर इस पे कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाता तो ये अपने आप को किसी भी डायरेक्शन में रेस्ट कराता. हाउ इज इट possible that this magnet is always aligning itself in a specific direction, the north towards geographic north and the south pole towards geographic south? It's only possible if there is some other magnetic field which is exerting force on this magnet. Where is that other magnetic field coming from? कौन है दूसरा मैग्नेट जो इस पे मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट कर रहा है? वो है Earth's magnetic field, because we have not kept any other magnet near it. So there is no magnet near it. So which magnet is producing magnetic field? It's the Earth's magnetic field which is exerting force on this particular magnet or this magnetic needle and causing it to come in a specific alignment. So this is the first evidence. Second evidence क्या है? An iron rod buried inside the earth along north-south direction becomes a magnet. Suppose तुमने एक iron rod लिया, a rod of made up of iron, and you buried it inside the earth, okay, in north south direction. तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में तुमने उसको बरी कर दिया और कुछ दिनों बाद, 5 दिन 6 दिन बाद, जब तुम उस रॉड को वापस निकालोगे ना मिट्टी से, you will see that the iron rod has developed some properties of magnet. It has become a weak magnet. और उसको ज्यादा दिनों तक रखोगे तो वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट भी बनेगा. जितने दिनों तक रखोगे इट विल बिकम अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट. ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है कि ये आयरन रॉड जरूर किसी दूसरे मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के विसिनिटी में था, किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड, किसी दूसरे मैग्नेट के किसी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में था, तभी उसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को अपने अंदर गेन कर लिया. इट्स जस्ट लाइक व्हेन यू स्टे विद गुड पीपल यू गेन देयर क्वालिटीज, व्हेन यू स्टे विद बैड पीपल you gain their bad qualities. So this iron rod must have been in contact or in the vicinity in the magnetic field of some other magnet where, and therefore this iron rod is now producing its own magnetic field. So whose magnetic field
was there in which this iron rod was kept in? किसके मैग्नेटिक फील्ड में ये आयरन रॉड को हमने रखा था इतने दिनों तक कि वो बाद में मैग्नेट बन गया? वो था अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड में उसने हमने उसको रख दिया था नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तब जाके ये आयरन रॉड मैग्नेट के प्रॉपर्टीज को गेन किया। So this is the second evidence which proves that the Earth's magnetic field exists. What about the third point? Neutral points are obtained on plotting the field lines of a magnet where the net magnetic field is zero. देखो इसको समझना, ध्यान से समझने की कोशिश करो क्या कहा जा रहा है। What is the meaning of neutral points and what are these things? Suppose, understand it, it's very simple. Suppose I'm drawing a bar magnet. I'm drawing a simple bar magnet. Okay, this is a bar magnet. Suppose this is the north polarity, this is the south polarity. तो मैंने जहाँ n लिखा हुआ नॉर्थ पोल, जहाँ मैंने s लिखा हुआ साउथ पोल, और यहाँ पे बीच में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया which separates the north and the south pole. तो ये अगर बार मैग्नेट है तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है अपने चारों तरफ? अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इस रीजन को क्या बोलेंगे? I have told you in the previous lecture, what do we call this region around this magnet where it shows its effect? इस रीजन को क्या बोलते हैं जहां पे ये मैग्नेट अपना प्रभाव दिखाता है? उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड इज दैट स्पेस अराउंड द मैग्नेट वेयर दिस मैग्नेट shows its effect, or you can say what we have written as the definition of magnetic field. It is the space around the magnet where the magnetic needle points in some other direction but not in north south direction. और अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के बाहर में अगर हम मैग्नेट को, मैग्नेटिक कॉम्पास को हम रखते हैं, सपोज दिस इज अ मैग्नेटिक कॉम्पास, दिस इज द नीडल ऑफ द मैग्नेटिक कॉम्पास, तो हाफ नीडल इज रेड ना, सो आई हैव ड्रॉन सी हाफ नीडल इज रेड. So suppose this needle is pointing towards north, the red part means the north pole of this magnetic needle is pointing towards geographic north, and the south pole of this magnetic needle is pointing towards geographic south. This side is west, this side is east, the cardinal direction. So north ऊपर, south नीचे, इधर west इधर east, बिल्कुल simple. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर में अगर मैंने इस मैग्नेट को रखा, मैग्नेटिक कॉम्पास को रखा, तब ये नॉर्थ नॉर्थ को पॉइंट कर रहा है. लेकिन अगर मैं इस कॉम्पास को इस मैग्नेटिक फील्ड में ले आता हूं, ये येलो कलर का जो शेडेड रीजन है उस पर मैं लेकर आता हूं इस कॉम्पास को, तो ऑब्वियसली तुम लोगों को पता है कि ये मैग्नेटिक कॉम्पास इस फील्ड में जब आएगा तब ये नॉर्थ साउथ में पॉइंट अब नहीं करेगा, ये किसी दूसरे डायरेक्शन में पॉइंट करने लगेगा, बिकॉज नाउ इट इज एक्टेड अपॉन बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस बार मैग्नेट. तो जस्ट अ मिनट, लेट मी ड्रिंक वाटर, जस्ट अ मिनट. ओके, तो मैं क्या बोल रहा था कि जैसे ही हम इस मैग्नेटिक कॉम्पास को इस मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आते हैं, तो ये मैग्नेट, बार मैग्नेट इस पर फोर्स लगाता है और इसका नीडल इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ, नाउ इट पॉइंट्स टुवर्ड्स सम अदर स्पेसिफिक डायरेक्शन, किसी दूसरे स्पेसिफिक डायरेक्शन में पॉइंट करता है, बट नॉर्थ साउथ में नहीं करता. लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड में भी दो ऐसे पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनो, इस मैग्नेटिक फील्ड में भी दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर ये नीडल को मैं लाऊंगा तो इस नीडल पर कोई फोर्स नहीं लगेगा और ये नीडल बिल्कुल फ्री टू रोटेट हो जाएगा. उन दोनों पॉइंट्स पर न तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का कोई फोर्स लगता है, न तो इस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड का कोई फोर्स लगता है. यानी उन दोनों पॉइंट्स पर क्या हो रहा है, इस बार मैग्नेट के द्वारा जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फोर्स है, और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है, उन दोनों फोर्सेस उस पॉइंट पर, वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल कर दे रहा है और नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जा रहा है. ये समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूं. सबसे पहले तो मैं ये बोलता हूं, मैंने जो बोला मैं एक बार रिपीट करता हूं. इस मैग्नेटिक फील्ड में तुम्हें ऐसे दो पॉइंट्स मिलेंगे. देखो मैंने यहां पे 2x बना दिया. ये 2x जो मैंने बनाया, ये दोनों x मान के चलो कि ये दोनों वही दोनों पॉइंट्स हैं जिनको हम न्यूट्रल पॉइंट्स बोलते हैं. और इन दोनों पॉइंट्स की खास बात क्या है, ये दोनों पॉइंट्स मैग्नेटिक फील्ड में लाई कर रहा है, इस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में लाई कर रहा है.
तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर लाई कर रहा है तो इसका मतलब कि इस पर, इस जगह पर भी फोर्स लग रही है बार मैग्नेट के द्वारा। लेकिन ऐसा नहीं है, इन दोनों, देयर आर टू सच पॉइंट्स जहां पर इस कॉम्पस को लाएंगे, इस एक्स के ऊपर अगर हम इस मैग्नेटिक कॉम्पस को लाएंगे तो इस कॉम्पस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, बार मैग्नेट के द्वारा भी कोई फोर्स नहीं लगेगा और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। यानी इन दोनों पॉइंट्स पर, इन दोनों एक्स पॉइंट्स पर बार मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स लग रहा है और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लग रही है, वो दोनों फोर्स एक दूसरे के मैग्नीट्यूड उन दोनों का इक्वल हो जा रहा है और डायरेक्शन एक दूसरे का ऑपोजिट हो जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है। I repeated that. It is just like something like this. Suppose you have a book kept on a table and you are applying 10 Newton of force towards right, and your friend is applying a 10 Newton of force towards left. तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ये बुक मूव करेगा, द बुक विल नॉट मूव, इट विल रिमेन इन इट्स प्लेस, मींस द नेट फोर्स is zero. The same thing happens in this case. The force due to the bar magnet's magnetic field and the force due to Earth's magnetic field, they become equal in magnitude but opposite in direction, and they cancel their effects in these 2 points, and these 2 points are such points which are known as neutral points, जहां पर इस कॉम्पस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, तो ये कॉम्पस किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में पॉइंट नहीं करेगा। और अगर जैसे ही मैंने इसको x से हटाकर किसी दूसरे पॉइंट पर मैं लेकर चला गया इसको, कॉम्पस को, तो ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, नॉर्थ साउथ में नहीं, लेकिन किसी दूसरे स्पेसिफिक डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। फिर मैं इसको, इसका पोजीशन चेंज करता हूं तो फिर इस पॉइंटर का एरो चेंज हो जाएगा, किसी दूसरे स्पेसिफिक डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। फिर मैं इसको इसी मैग्नेटिक फील्ड में मैं अगर किसी और पॉइंट पे लेके जाता हूं इस कॉम्पस को, तो ये फिर किसी एक तीसरे स्पेसिफिक डायरेक्शन में, कोई एक अलग स्पेसिफिक डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, लेकिन स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगा। तो अलग अलग प्लेस पॉइंट्स पर ये कॉम्पस अलग अलग स्पेसिफिक डायरेक्शंस पे पॉइंट कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड के बाहर में जब लेके जा रहा हूं तो ये नॉर्थ साउथ स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही पॉइंट कर रहा है। लेकिन ये जो एक्स पॉइंट्स पर अगर मैं इस कॉम्पस को लेके जा रहा हूं तो ये किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में पॉइंट नहीं कर रहा है, जहां इसका मन कभी इधर इधर पॉइंट कर रहा है, अगली बार मैं लेके जा रहा हूं तो उधर पॉइंट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस पे कोई फोर्स ही नहीं लग रही है, इस कॉम्पस पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है इस इन एक्स पॉइंट्स पर। तो ये इसी पॉइंट्स को, इन्हीं दोनों पॉइंट्स को हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स। तो न्यूट्रल पॉइंट्स हम ऑब्टेन करते हैं। ये जो न्यूट्रल पॉइंट्स हमने ऑब्टेन किया, ये तभी संभव है जब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हो, क्योंकि अर्थ का अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहता तो डेफिनेटली कोई दूसरा, इसका मतलब इस उस उन पॉइंट्स पर फोर्स को कैंसिल करने वाला कोई फोर्स नहीं रहता। तो इन दोनों पॉइंट्स पर बार मैग्नेट का फोर्स को कैंसिल करने के लिए कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड जरूर है, जो इन दोनों पॉइंट्स पर इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर रहा है। और वो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है जिसका फोर्स इन इस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर रहा है और नेट फोर्स जीरो बना दे रहा है? वो कौन सा दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है? डेफिनेटली कोई है, वो है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। न्यूट्रल पॉइंट्स हम ऑब्टेन करते हैं, इसका मतलब कि ये भी एक प्रूफ है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है ना? न्यूट्रल पॉइंट्स का डेफिनेशन हम लिखने वाले हैं, जो मैंने अभी समझाया। यू सी व्हाट आई हैव रिटन। न्यूट्रल पॉइंट्स आर द पॉइंट्स, वो पॉइंट्स होते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स वेयर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट, जहां पे ये बार मैग्नेट जो मैंने लिया था उसका मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। किसके इक्वल हो जाता है? किसके उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल हो जाता है। तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाता है, बट इट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मैंने अभी भी बताया था डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। जस्ट लाइक द एग्जांपल व्हिच आई गिव, 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स उधर से भी लग रहा है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ऐसा केस अगर होगा तो क्या होता है? द रिजल्टेंट और नेट मैग्नेटिक फील्ड इन दीज न्यूट्रल पॉइंट्स इज जीरो। तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है वहां जीरो है। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दोनों इंटरैक्ट कर रहे हैं वहां पे, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके उन दोनों पॉइंट्स पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो बना दे रहा है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स। न्यूट्रल पॉइंट्स को हम
आगे जब हम प्लॉटिंग करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार ग्राफ, बार मैग्नेट, तो वो भी हम वहां पे देखेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे पहला जो हमें डायग्राम बनानी है और या प्लॉट करना है, वो है अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड को हम प्लॉट करते कैसे हैं। व्हाट इज द टेक्निक ऑफ प्लॉटिंग द मैग्नेटिक फील्ड? ठीक है, लिसन केयरफुली। मैग्नेटिक फील्ड को प्लॉट करने के लिए हमें एक मैग्नेटिक कॉम्पास का जरूरत होता है। वही कॉम्पास जो छोटा सा हैंडल डिवाइस है, जिसका मैं अभी तक इतना जिक्र कर रहा हूं, जिसका एक नीडल होता है और वो पॉइंट करता है हमेशा नॉर्थ साउथ में। वो मैग्नेटिक कॉम्पास का जरूरत है, छोटा सा डिवाइस होता है, इतना छोटा सा, और उसे एक कॉम्पास हमें बस चाहिए, मैग्नेटिक कॉम्पास, बस हम प्लॉट कर सकते हैं। इतना ही सिंपल है। क्या करूंगा मैं? उस कॉम्पास को, उसका पॉइंट किधर कर रहा है वो, उसको बस मैं मार्क करते चलूंगा। तो सपोज फॉर एग्जांपल यू सी इन माय डायग्राम, सपोज द नीडल, you see half of the needle is red and half of the needle is white. You see the needle points vertically upwards. Suppose this time the needle points vertically upwards, means north, geographic north is up, so it points towards north. Then the red is north of the magnet and white is south pole of the magnet. Magnet means magnetic needle, so the north pole is facing towards geographic north. तो जहां पे वो पॉइंट कर रहा है ना, उस पॉइंट को मैं पेंसिल से मार्क कर लिया, और फिर मैं उस पॉइंट को, सपोज पॉइंट का नाम मैंने यहाँ पे ए डाल दिया, दिस पॉइंट ए। ओके, सो मैंने इस पॉइंट ए पर मैं फिर इस कॉम्पस को रखूंगा, तो मैं देखूंगा कि ये फिर से ऑब्वियसली नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा, यानी द रेड पोर्शन विल अगेन पॉइंट वर्टिकली अपवर्ड्स ओनली। तो फिर मैं उस पॉइंट को मार्क कर लूंगा, फिर मैं उसको आगे रखूंगा। जैसे मैं पॉइंटर जहां पे मैं डॉट बना रहा हूं, ये सपोज पॉइंट बी है, फिर मैं पॉइंट बी पर मैं इस कॉम्पस का वाइट, जहां पे वाइट हाफ जहां पे पॉइंट कर रहा है, वहां पे मैं इसको रखूंगा। तो मैं डॉट पर क्या रख रहा हूं? साउथ पोल, मैग्नेट का साउथ पॉइंटिंग जो पोल है, वो डॉट पे मैं रख रहा हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जो व्हाइटिश रीजन ऑफ द नीडल है, यानी द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल है, वो उस डॉट की तरफ पॉइंट करनी चाहिए, और मैं रेडिश हाफ जहां पे रेड हाफ जहां पे पॉइंट कर रहा है, उसको मैं फिर डॉट से मार्क कर दे रहा हूं। ऐसा मैं करते जा रहा हूं, तो मुझे डिफरेंट पॉइंट्स मिलते जाएंगे। और यही चीज मैं फिर थोड़ी इसके नेक्स्ट जगह में करूंगा, सेम चीज। तो मैं सेकंड में इसके जस्ट बगल में करूंगा, तो मुझे फिर से ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे, तो मिलते मिलते चलेंगे स्ट्रेट लाइन में सीधा। इन सारे पॉइंट्स को मैं अगर कनेक्ट कर दूं, तो मुझे कैसा लाइंस मिलेगा? मुझे ऐसे स्ट्रेट लाइंस मिलेगा ना, पैरेलल टू ईच अदर। मुझे स्ट्रेट लाइंस मिलेंगे पैरेलल टू ईच अदर, राइट? यही है अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिक आइडिया क्या है, कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, कि हम कॉम्पास चाहिए, कॉम्पास को हम रखते जाते हैं, पॉइंट्स मार्क करेंगे, और जो पॉइंट मैंने मार्क किया, फिर हम कॉम्पास का जो व्हाइट पोर्शन जहां पे नीडल है, उसको मैं डॉट की तरफ पॉइंट करूंगा, फिर मैं रेड कहां पॉइंट कर रहा है वहां पे मार्क कर दूंगा। फिर नया जो पॉइंट मैंने मार्क किया, उसमें मैं फिर व्हाइट पॉइंटर को मैं रखूंगा पॉइंट करता हुआ, और फिर मैं रेड अब कहां पॉइंट करें वहां पे फिर मैं न्यू पॉइंट को मार्क कर दूंगा। इस तरह से वो चलता जाएगा, एंड वी विल कनेक्ट ऑल द पॉइंट्स एंड वी विल गेट इट। इसके आगे मैं बार बार मैग्नेट का भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, तब और क्लियर हो जाएगी, अगर यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ तो। तो तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को मैंने हर एक पॉइंट्स को जब ज्वाइन किया, तो मुझे स्ट्रेट लाइंस ऐसे ऐसे मिले। तो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ ये ज्योग्राफिक नॉर्थ था, तो बाहर ज्योग्राफिक नॉर्थ था, और ये नीचे ज्योग्राफिक साउथ है। ठीक है, एंड दिस इज द सिंपल डायग्राम ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। यू हैव टू बी केयरफुल that earth's magnetic field is known as uniform magnetic field. Why? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये नोट कर लो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इसे हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो लाइंस हमें मिलती है, वो होती है इक्विडिस्टेंट। ये जो मैं लिख रहा हूं, ये सुपर्ब इंपॉर्टेंट है। इक्विडिस्टेंट, दूसरा पैरेलल। ये दोनों क्वालिटीज होने चाहिए। सो वी ऑब्टेन पैरेलल लाइंस एंड वी ऑब्टेन इक्विडिस्टेंट लाइंस। सिर्फ पैरेलल है, इक्विडिस्टेंट नहीं है, तो फिर वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मींस द field line should be equidistant as well as parallel. These are the two characteristics of uniform magnetic field, and Earth's magnetic field is uniform, ऐसा भी पूछा जा सकता है।
व्हाट इज द नेचर ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का कैसा होता है प्लॉट? द फील्ड लाइंस आर इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दिस इज। ये एग्जाम में जब आएगा, ऐसे 2 3 4 पैरेलल लाइंस, इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस बनाना, एरोज बनाना जैसे मैंने बनाया, ऊपर लिखना ज्योग्राफिक नॉर्थ, क्योंकि ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ हमें ये पॉइंट करता हुआ हमें कंपास मिला था, और नीचे की तरफ ज्योग्राफिक साउथ, फुल मार्क्स मिलेंगे। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स ड्राइंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट। देखो ध्यान से, फिर मैं इसको करने की कोशिश कर समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल थिंग है, लेकिन थियोरेटिकली मैं इसको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। अब मुझे कॉम्पास चाहिए। सपोज ध्यान से देखना, मैंने कॉम्पास लिया, मैंने कॉम्पास को यहाँ पे रखा, मान के चलो मैंने कॉम्पास रखा, तो कॉम्पास का जो नीडल है, अब मैं बस एरो को मैं ना ऐसे एरो बना रहा हूँ, नीडल को, कॉम्पास का नीडल को मैं सिंपल एरो बना रहा हूँ, ताकि जो एरो हेड है वो नॉर्थ पोल है, और जो एरो का जो जहाँ एरो हेड नहीं है, तो एंड है, जो टेल ऑफ द एरो है, दैट इज साउथ पोल। तो ये मेरे लिए अभी बनाने इजी होगा। तो सबसे पहले मैंने जब यहाँ पे कॉम्पास को रखा, मुझे कुछ इस तरह का पोजीशन ऑफ द नीडल मिला, तो मैंने डॉट मार्क कर लेनी है। कहाँ पे डॉट मार्क करूंगा? मैंने बताया था कहाँ डॉट मार्क करूंगा, जहां नीडल पॉइंट करता है। तो नीडल का नॉर्थ जहां पॉइंट करता है, वहां पे मैंने मार्क कर लिया। अगली बार मैं इस डॉट पर इस नीडल का टेल को रखूंगा, मतलब व्हाइट पोर्शन जहां पे पॉइंट करेगा, उस डॉट पे मैं रखूंगा, यानी इस नीडल का टेल को मैं इस डॉट पे रखूंगा। तो जब मैंने इस नीडल का टेल को रखा इस पे, तो देखा कि ऐसा पॉइंट कर रहा है वो कॉम्पास, तो फिर जहां पे वो पॉइंट कर रहा है उस पॉइंट को मैं मार्क कर लूंगा। अब थर्ड टाइम मैं क्या करूंगा, फिर मैं इस नीडल को रखूंगा, कॉम्पास को रखूंगा, तो इसका नीडल का टेल मैं इस डॉट की तरफ पॉइंट करता हुआ रखा, तो मुझे कुछ इस तरह का नीडल का अलाइनमेंट मिलेगा। फिर वहां मैं डॉट को मार्क कर लूंगा, तो ऐसे मैं चलता जाऊंगा, तो मुझे इस तरह का मिलता रहेगा। आगे मैं बढ़ता जाऊंगा सेम तरीके से, जहां मुझे डॉट मिल रहा है मैं कॉम्पास को रख रहा हूं आगे, और कॉम्पास का जो नीडल का जो टेल है उस डॉट के तरफ पॉइंट कर रहा है, और मैं नया पॉइंट मार्क कर ले रहा हूं, जहां पे मुझे ये पॉइंट एरो जहां पे पॉइंट कर रहा है, वहां पे मैं नए डॉट को मार्क कर ले रहा हूं। तो नया डॉट मैंने मार्क कर लिया, और आगे मैंने फिर रखा कॉम्पास को, उसका नीडल का टेल जहां पे है वहां पे मैंने डॉट डॉट की तरफ उसको रखा, और फिर से ये नीडल जहां पॉइंट कर रहा है वहां डॉट को मैंने मार्क कर लिया, न्यू डॉट। ऐसा चलता गया, तो मुझे कुछ इस तरह का मिला। ये सेम चीज मैं नीचे की तरफ भी किया, इसको मैं मूव करता गया, तो मुझे ये इस तरह का कुछ पोजीशंस ऑफ द एरो मिलता गया। ये एक्सपेरिमेंटली किया जा सकता है। इस तरह से अलग अलग पोजीशंस पे मैं इसको रखूंगा, तो मुझे अलग अलग नीडल का ऐसा पोजीशंस मिलता रहेगा, और मुझे कुछ इस तरह का पोजीशन मिलेगा। तो मैं अगर ओवरऑल इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूं, तो मुझे कैसा मिलेगा ग्राफ? कुछ इस तरह का कर्व्स मिलेंगे मुझे। देखो अब मैं उन डॉट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, तो मुझे कुछ इस तरह के मिलेंगे कि नहीं? बिल्कुल मिलेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो नीचे की तरफ भी मैं बना देता हूं, ठीक है। तो ये इनका जो डायरेक्शन होता है नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल डायरेक्टेड होता है। तुमने देखा भी कॉम्पास का नीडल नॉर्थ से बेंड करता हुआ साउथ की तरफ गया, नीचे भी नॉर्थ से बेंड करता हुआ साउथ की तरफ कॉम्पास का नीडल बेंड किया। तो इन लाइंस को जो मैंने ज्वाइन किया, और भी 2 3 लाइंस तुम बना सकते हो ऊपर में, ठीक है ना, एरोज देकर ऐसे अपनी मर्जी, ठीक है। तो ये जो मैग्नेट लाइंस हमने बनाया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने बनाया बार मैग्नेट का। यूं तो हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक लाइन फील्ड लाइंस दे डू नॉट इंटरसेक्ट, लेकिन देख रहे हो पोल्स की तरफ ये लगभग इंटरसेक्ट कर ही चुका है। मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूं, तो यहाँ पे एक्चुअली रियलिटी में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, दे कम वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड दे अपीयर टू बी इंटरसेक्टिंग, बट दे एक्चुअली डोंट इंटरसेक्ट। तो यहाँ पे हम जब बनाते हैं तो थोड़ा मोड़ा इंटरसेक्ट करता ही है, उससे मार्क्स बिल्कुल डिडक्ट नहीं होता है, दैट इज एक्सेप्टेबल। इट इज एक्चुअली द field lines come very close to each other and they seem to be intersecting, actually they don't intersect, so you have to draw it very cleanly. So this is the magnetic field lines of a bar magnet, ठीक है। Now one thing, if the north pole of the bar magnet faces towards geographic north, means if the north pole,
मैंने पेपर में सपोज इस मैग्नेट को इस तरह से रखा, पेपर में मैं इसको मैग्नेट को रखकर मैं बनाता हूं ना, तो मैंने सपोज पेपर में मैग्नेट को मैंने इस तरह से रखा कि ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है और मैग्नेट का साउथ पोल ज्योग्राफिक साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है। इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है। तो न्यूट्रल पॉइंट्स हमें कहाँ कहाँ मिलेंगे? न्यूट्रल पॉइंट्स हमें इस पोजीशन पर मिलेगा जहां पे मैंने x लिखा, और इस पोजीशन पे मिलेगा जहां पे मैंने x लिखा। तो ये नोट कर लो कि ये जो मैग्नेट का जहां पे वो हिस्सा, आधा हिस्सा है जहां से होता है, उस लाइन पे जो मैग्नेट, जो लाइन, जो इमेजिनरी लाइन मैग्नेट के एकदम बीचों बीच से उसको हाफ हाफ में डिवाइड करता होगा, उस लाइन पर मुझे 2 पॉइंट्स मिलेंगे जो होते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स। कब? जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। On the other hand, first draw this, first draw this. So the two neutral points, mark it in your figure, and then suppose I'm yes, this is one neutral point and this is the other neutral point. First draw this, and also draw this cardinal directions. The north, this north, geographic north की तरफ magnet का north point कर रहा है. But I hope now you have drawn. Now let me do the other one. If the magnet is kept on the paper in such a way that its north pole faces towards geographic south, मतलब इस बार मैं cardinal directions को बना रहा हूं, तुम देखो इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है। तुम्हें दिख रहा है ना कि इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है और मैग्नेट का साउथ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है। पेपर में मैंने इसको ऐसे रखा है, तो हमें न्यूट्रल पॉइंट्स ऐसे नहीं मिलेंगे जैसा मैंने अभी यहाँ पे बनाया हुआ है। तो न्यूट्रल पॉइंट्स तब हमें कैसे मिलेंगे? फर्स्ट लेट मी क्लियर द डायग्राम। तब न्यूट्रल पॉइंट्स हमें कैसे मिलेंगे? मैं एक बार कार्डिनल डायरेक्शंस को बना देता हूँ। दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट। तो नॉर्थ पोल इज फेसिंग टुवर्ड्स ज्योग्राफिक साउथ एंड साउथ इज फेसिंग टुवर्ड्स ज्योग्राफिक नॉर्थ। इस बार मुझे जो न्यूट्रल पॉइंट्स मिलेंगे वो इस सेंटर के दोनों तरफ मिलेंगे। देख लो मैंने 2x पॉइंट किया और इस बार वो इनका पोजीशंस को देखो न्यूट्रल पॉइंट्स का। इस बार जो न्यूट्रल पॉइंट्स हैं वो दूसरे वाले जो सेंटर एक्सिस जो है इस मैग्नेट के बीचों बीच जो लाइन कट रहा है उस लाइंस पर मुझे मिलेंगे, उस लाइन पर मुझे मिलेंगे। तो ये न्यूट्रल पॉइंट्स का पोजीशन दोनों इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर आया, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड न्यूट्रल पॉइंट व्हेन द मैग्नेटिक, when the bar magnet faces, when the north of the bar magnet faces towards geographic north and south faces towards geographic south, तो पिछला वाला बनाना। और अगर आया कि north faces towards south and south faces towards north, तो ये वाला बनाना। और अगर कुछ भी जिक्र नहीं किया हुआ है कि नॉर्थ कहाँ फेस कर रहा है, साउथ किधर फेस कर रहा है, तो सिंपल न्यूट्रल पॉइंट्स को वहां मत बनाना, सिंपल ये बस डायग्राम बनाना, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करना, दैट इज एनफ। So this is the magnetic field lines of a bar magnet. Okay, now we are going to draw the magnetic field lines of a U-shaped magnet. This is suppose a U-shaped magnet. All of you see. Okay, so U-shaped magnet का दो legs होता है. One of the legs is, you know, it is positive, it is north. The other leg is south. Let me draw this magnet first. बन जा, अच्छे से बन जा. So this is suppose north, this is south. तो मैंने बताया ना, इसके पिछला वाला डायग्राम में भी देखो, north से south. Always remember, the lines always move out from north pole and enter towards south pole. So direction of magnetic field lines is always from north to south. Previous जो हमने वीडियो में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसमें भी मैंने लिखाया था आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, याद रखना। तो इसमें भी वही है, नॉर्थ से साउथ अब हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। देखो मेरे फिगर में बड़ा सिंपल है, नॉर्थ से साउथ, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्लॉट नाउ। और ये भी प्लॉट हमें वैसी तरह मिला, मैग्नेटिक नीडल को मार्क करता हुआ हमने चला और हमें मिलता गया ये पॉइंट्स, और हमने पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। बिल्कुल ही सिंपल है। So you see the arrows from North Pole, they are going out, and towards South Pole, they are coming in. This is how the magnetic field lines are drawn.
Towards South Pole, they're coming in and they're moving out from North Pole. I hope this is getting clear, right? So this is the magnetic field lines of a U-shaped magnet. Now, magnetic field lines when two unlike poles are facing each other. दो unlike poles है, मतलब एक north है एक south है. तो किसी एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहाँ पे है, किसी एक मैग्नेट का मान के चलते हैं साउथ पोल, दोनों एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं. सपोज दिस इज नॉर्थ पोल एंड द अदर वन इज साउथ पोल, दे आर फेसिंग ईच अदर एंड दे आर टू डिफरेंट मैग्नेट्स. See, I have not drawn the south pole of the first magnet. I have not drawn the north pole of the first magnet. But इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने एक मैग्नेट लिया जिसमें सिर्फ नॉर्थ पोल है और मैंने एक मैग्नेट लिया जिसमें सिर्फ साउथ पोल है. ऐसा पॉसिबल नहीं है. जो फर्स्ट मैग्नेट मैंने यहाँ ड्रॉ किया है उसका साउथ पोल को मैंने शो नहीं किया, लेकिन जरूर है. और जो मैंने दूसरा मैग्नेट यहाँ बनाया है उसको बस मैं साउथ पोल को शो किया, नॉर्थ को मैंने शो नहीं किया. नॉर्थ जरूर है. तो नॉर्थ एंड साउथ ऑफ टू डिफरेंट मैग्नेट्स आर फेसिंग ईच अदर, तो इसका फील्ड लाइंस कैसे होगा? ऑब्वियसली वही रूल है, नॉर्थ से साउथ जाएगा. तो नॉर्थ से साउथ, बिल्कुल कोई दूसरा इसमें टेंशन ही नहीं है. बिल्कुल क्लियर लाइंस होनी चाहिए. थोड़े से सुंदर, मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ तो मेरा उतना सुंदर नहीं हो रहा है, लेकिन तुम लोगों का सुंदर होना चाहिए, क्योंकि मैं तो डिजिटल पेन से बना रहा हूँ और इसमें it is not possible to draw with that perfection. At least I cannot draw it with that perfection with this digital pen. So you see, from north to south, there the lines have drawn. This is the simple thing. यही बनाना है तुम्हें. Now, when magnetic field lines we have to draw when two like poles are facing each other. इस बार north north face कर रहे हैं अपने तरफ या फिर साउथ साउथ फेस कर रहे हैं. तो मैं यहाँ पे मैग्नेट का नॉर्थ और दूसरा मैग्नेट का भी नॉर्थ, दूसरा कोई एक मैग्नेट उसका नॉर्थ, तो ऑब्वियसली मैंने साउथ को शो नहीं किया, लेकिन साउथ है. ऐसा नहीं है कि साउथ नहीं है, ऐसा हो सकता है कि साउथ ही नहीं है इस मैग्नेट में, ऐसा हो ही नहीं सकता. एक मिनट, ये इसको मैं सिलेक्ट करके नीचे ले आता हूँ थोड़ा. हाँ, तो यू सी द नॉर्थ एंड साउथ आर फेसिंग. ओ दिस टाइम तो like poles will be facing. I'm sorry, south, north and north should be facing. So north and north should be facing. I have not shown the south pole. Now what happens in this case? The magnetic field lines will not move from north to north because the rule says north to south. तो मैं compass को रखूंगा तो मुझे कुछ इस तरह के positions मिलेंगे. देख लो, मैं कुछ एक magnetic field lines को बना रहा हूँ. Okay. So always remember, lines north से जो lines निकलते हैं they move away from the north. तो arrows भी away from north होगा. दोनों ही केसेस, दोनों ही नॉर्थ में अवे फ्रॉम नॉर्थ होगा. टुवर्ड्स नॉर्थ कभी नहीं होता है. वहीं अगर मैं साउथ साउथ को फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर बना दूं, साउथ साउथ को फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर बना दूं, सपोज दिस इज साउथ एंड दिस इज साउथ, इस केस में भी लाइंस तो बिल्कुल उसी पैटर्न के मिलेंगे, लेकिन बस एरो हेड्स अलग हो जाएंगे. इस बार क्या होगा? एरो हेड्स आर ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स साउथ, यानी साउथ के तरफ पॉइंट करेगा दोनों ही मैग्नेट्स के साउथ पोल में. तो यहाँ साउथ के तरफ पॉइंट करेगा. देख रहे हो एरोज? So mark the differences when north north facing and when south south facing. So all the magnetic field lines we have studied in this video, and we will meet in the next video where I will discuss with electromagnet that topic. Thank you for watching.